my channel Success with Science by Vasudha Sharma. I am Vasudha Sharma and I am going to take you ahead with the chapter. हमारा chapter है carbon and its compounds और हमारा अगला topic है the structure of sulfur molecule. अब ये question एक important board question है और CBSE बोर्ड का ब्लू बॉक्स CBSE NCERT बुक का ब्लू बॉक्स क्वेश्चन भी है. ड्रॉ द क्राउन शेप स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल. तो इसको करने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अ सल्फर एटम? दैट इज 16. तो अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? K शेल, L शेल एंड M शेल. 2, 8, 6. नाउ दैट मीन्स इसमें लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स to satisfy or to complete its octet is 2 pairs of electrons. अब हम आपको बता दें कि केमिकल फॉर्मूला सल्फर मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला होता है S8 यानी 8 atoms. Each S atom, each sulfur atom is linked to similar atoms. How many similar atoms? 8 other atoms. यानी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 atoms का एक मॉलिक्यूल बनता है. नाउ ऑन 8 साइड्स द each sulfur atom is surrounded by total 8 atoms. Okay, now what is the shape? What is the shape of this molecule? It is actually a ring shaped molecule but in the form of a crown. आइए देखिए crown कैसे बना. Let us count. One sulfur atom linked to another sulfur atom, linked to the third sulfur atom, linked to the fourth one, fifth one, sixth one, seventh one and eighth one. If you look at it, doesn't it give you the shape of a crown? ये crown की shape देता है. That is why we call it a crown shaped structure of sulfur molecule. But I will tell you how they are actually joined to each other. This sulfur atom, as I told you, has 2, 8 and 6 electrons. Last shell 6 electrons. तो देखते हैं इनकी बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे हुई. नाउ कैन यू काउंट दैट इन ऑल आई हैव 8 एटम्स ऑफ सल्फर. 8 एटम्स. नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. हर सल्फर एटम के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब उन्होंने कुछ अपने आप को इस तरह से अलाइन किया है. 2, 2, 4, 1 and 2. That means 6 of this particular sulfur atom. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons. Of the second atom, again I have 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let me see. एक सल्फर एटम दूसरे सल्फर एटम के साथ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके कैसे बॉन्ड बनाता है. नाउ दिस इज गोइंग टू मेक अ बॉन्ड लाइक दिस. लेट मी काउंट. इस सल्फर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक सल्फर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले सल्फर एटम के साथ शेयर किया और एक पेयर राइट हैंड वाले सल्फर एटम के साथ शेयर किया. लेट मी काउंट नाउ. सी, कोवलेंट बॉन्डिंग इज ऑलवेज म्यूचुअल. इस सल्फर एटम ने एक शेयर किया तो अपना भी एक देगा. इट्स म्यूचुअल. वन इलेक्ट्रॉन shared, that means one electron from this side and the other from its own side. So this sulfur atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? And it is also going to share one electron from this side and one from this side. See, one single bond, one single bond. Now let us come to this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये ऐसा रिंग बनाएगा. ऐसे ही सिमिलरली विल कंटिन्यू. दिस सल्फर एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कैन यू सी दिस? द नेक्स्ट वन sulfur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That means mutual sharing of one pair on either side. Means each sulfur atom gets 2 electrons extra sharing. One from this side, one from this side. तो टोटल कितने हो जाते हैं? हर सल्फर एटम के पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे बन जाते हैं. सो लेट मी टेक द नेक्स्ट वन. दिस इज हाउ इट विल मेक अ रिंग. नेक्स्ट वन, this sulfur atom
ring and 8 electrons. See how 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This sulfur atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है. अब इस रिंग को अगर हम इस तरह से देखें तो सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर 3, राइट, 4, 5, 6, 7 and 8. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके. अब लेकिन जब हम इनको 3D शेप में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं. They look like a crown. Looks like, see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doesn't it look like a crown? So this is called crown shaped structure of sulfur molecule. Next question है important, that is कि draw the structure, the electron dot structure of carbon dioxide molecule. ये भी NCERT के blue box question में से ही है, right? Now let us draw the structure and let us learn. I told you in the beginning कि हम ये आगे डिटेल में करेंगे. ये वही डिटेल्स हैं. अब सबसे पहले the first step that you have to take up is write down the atomic number or the electronic configuration of the given atoms. अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 and 4. And what about ऑक्सीजन? ऑक्सीजन है 2 and 6. अब हम देख रहे हैं कि कार्बन को अपना लास्ट शेल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4. यानी ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. एंड ऑक्सीजन के एक एटम को 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2. यानी देखते ही हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स एक कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. लेट अस सी हाउ. तो हम कार्बन को सेंटर में ले लेंगे, राइट. अब जब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हम उसको अलाइनमेंट कुछ इस तरह से कर देंगे. ओके. अब एक ऑक्सीजन एटम ऑन वन साइड and the other oxygen atom on the other side. Now preferably use different colors or you can use different signs to draw the electrons of 2 different atoms. So I am going to use a different color and a different sign as well. Now oxygen has how many? 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons. And this oxygen atom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब अलाइनमेंट कुछ इस तरह से हो गई. अब देखें शेयरिंग कैसे हो रही है. नाउ दिस इज कंप्लीटिंग इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इसके अपने 2 कार्बन के. लेट मी लुक एट द नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम. द नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम अगेन इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन एटम. अब कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेगा भी. तो इट इज गोइंग टू टेक ऑल्सो बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल शेयरिंग. अब देखें कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे बनेंगे. दिस इज हाउ कार्बन ऑल्सो कंप्लीट्स इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. आइए काउंट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये बना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. हमारा अगला टॉपिक है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांच बनाता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है. नाउ वी ऑल नो कार्बन इज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट. उसमें कैटनेशन की प्रॉपर्टी है, देन इट हैज मल्टीपल बॉन्डिंग द प्रॉपर्टी, इट हैज अ स्मॉल साइज, सो मेनी प्रॉपर्टीज इट हैज, टेट्रावेलेंसी इट हैज, जिसकी वजह से यूनिक है. अब उस यूनिकनेस की वजह से कार्बन हैज द एबिलिटी टू मेक बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम वेरी वेरी रेडली. एंड ये कार्बन और हाइड्रोजन के इतने सारे कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कि हम उन सबको एक अलग ही कैटेगरी में पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे डिफाइन करेंगे हम. These are those chemical compounds that contain carbon hydrogen bonds. तो ये हमारे we have uncountable number of a huge number of compounds जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. Now the question is carbon dioxide
organic compound? Yes, is it organic compound? Your answer will be no. Why is this not an organic compound? क्योंकि इसमें तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. Now let me tell you children that oxides of carbon or carbonates or bicarbonates also, they are not considered as organic compounds. Now organic compounds can be broadly classified as saturated and unsaturated compounds. Now saturated and unsaturated organic compounds. एक होता है saturated और उसकी second जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे that would be unsaturated, right? ये इसकी दो कैटेगरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. What are organic, saturated organic compounds and unsaturated organic compounds? Now please note the definition. Saturated organic compounds are those organic compounds which have carbon-carbon single bond throughout the chain. Throughout the chain इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. Then it is called कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड चेन और एल्केन्स. जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक भी कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होगा, there it is called alkenes और unsaturated organic compounds. जिस कार्बन चेन में एक भी ट्रिपल बॉन्ड है, there it is called alkynes. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हुआ alkyne और वो किस कैटेगरी में आया? Unsaturated organic compounds. So I can define saturated organic compounds are those organic compounds which have carbon-carbon single bonds. They are satisfied, they are saturated, they are stable compounds. Whereas unsaturated organic compounds are the compounds which have either carbon-carbon double bond in the chain or carbon-carbon triple bond in the chain. They are called unsaturated and they are slightly unstable as compared to the saturated compounds. तो बच्चों ये डेफिनेशन जरूर याद रख लेना, आपको मीनिंग आना चाहिए. एल्केन्स वो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. एल्कीन्स वो कंपाउंड्स हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम एल्काइंस कहते हैं. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ एल्केन्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, नॉमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पता होने के लिए हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए. नाउ एल्केन्स आई टोल्ड यू ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इनका जनरल फॉर्मूला क्या है. इनका जनरल फॉर्मूला है, प्लीज नोट इट डाउन, CnH2n+2. यानी अगर कार्बन एक एटम है, अगर n is 1 तो हाइड्रोजन कितने होंगे एटम्स? 2 × 1 + 2 दैट मीन्स 4. अगर कार्बन एटम्स हुए 2 तो कितने होंगे? n अगर 2 हुआ तो 2 × 2 = 4 + 2 6. So if C is 1, H is 4, CH4 नाम है मिथेन. देखिए अगर कार्बन एटम एक होगा तो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स मिथ, और एल्केन्स में लगता है एन, सो नाम बना मिथेन. ऑल्दो नॉमेनक्लेचर आपके कोर्स में नहीं है, बट ये थोड़ा सा बेस आपको मालूम होना चाहिए फॉर योर नॉलेज. नाउ अगर कार्बन एटम्स दो हैं, इफ वी हैव 2 कार्बन एटम्स, तो प्रीफिक्स लगता है इथ, ETH, और क्योंकि ये एन एल्केन है तो आगे लगता है एन, इथेन. अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रीफिक्स लगता है प्रोप, और एल्केन है तो आगे लगेगा एन. पूरा वर्ड क्या बना? प्रोपेन. लेट मी चेक, क्या ये जनरल फॉर्मूला में फिट आ रहे हैं हमारे इनके फॉर्मूला? मिथेन means 1 carbon atom, C1H4. It is satisfying. It is a correct alkane. Ethane, C2H6. Again, it fits the general formula. It's correct. Propane, C3H8. Now let me count
नाउ लेट अस काउंट कार्बन एट, इसका जो बेसिक व्हेन वी राइट द फॉर्मूला, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कार्बन कार्बन में पहले सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, उसके बाद जो बॉन्ड्स बचे उनको हम फिलअप करेंगे हाइड्रोजन से। कार्बन एक है, मुझे मालूम है ये टेट्रावेलेंट है, इसके 4 बॉन्ड्स बना के उन्हें फिलअप कीजिए हाइड्रोजन से, वो बन गया मीथेन। अब लेट मी कम टू इथेन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पहले मैंने बना लिया, अब मैं बचे हुए बॉन्ड्स में हाइड्रोजन एटम्स फिलअप करूंगी। लेट मी सी हाउ। कार्बन 1 ऑलरेडी फिल्ड, कितने बॉन्ड्स बचे? 3, 1 2 3, उन पे क्या लगा देंगे हम? हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। लुक एट द सेकेंड कार्बन एटम, 1 बॉन्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कितने बचे? 3, 1 2 3। तो ये तरीका है इन्हें इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने का। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, प्रोपेन C3 1 2 3। अब हर कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेट अस सी हाउ। पहले तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा लिया। अब पहला कार्बन एटम देखिए, एक बॉन्ड ऑलरेडी है, कितने बचे? 3, 1 2 3, फिल इट अप विद हाइड्रोजन। लुक एट द सेंट्रल कार्बन एटम, जो बीच वाला कार्बन एटम है, इसमें ऑलरेडी 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि एक कार्बन एटम के साथ एक कार्बन एटम के साथ। इसमें कितने बॉन्ड्स बचे? 2, फिल इट अप विद हाइड्रोजन। थर्ड कार्बन एटम 1 2 3 4, सिमिलरली काउंट C3H8 satisfying the formula. Let us count the hydrogen atoms 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है एल्केन फैमिली के पहले 3 एल्केन्स, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Now just take a closer look at this board. Okay, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन पहला अल्केन था, राइट, CH4। अब इसकी अलाइनमेंट और इसे कैसे बनाया जाए, पहला स्टेप, कार्बन एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 2 and 4। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज 1। नाउ एवरी हाइड्रोजन एटम नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, एवरी कार्बन एटम नीड्स 4 more electrons। यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ म्यूचुअली शेयरिंग करके बॉन्ड्स बना रहे हैं 4। लेट अस सी हाउ। कार्बन एटम अलाइंस इट्स 4 electrons is in this manner. 4 hydrogen atoms come and attach in 4 different directions, and alignment is like this. Now each hydrogen atom shares 1 pair of electron with carbon atom. Can you all see this? ठीक है। अब let us look at the carbon atom. कार्बन एटम म्यूचुअल शेयरिंग करते हुए क्या करेगा, इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेगा। सो बॉन्ड बन गया कुछ ऐसा, राइट। ये हुआ मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लुक एट दिस, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 1। सो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज C single bond H, single bond H, and single bond H. Now let us look at the next member of this alkane family, that is, this was methane. We will study now ethane. Ethane is C2H6. Eth means 2 carbon atom, ane means alkane, so C2H6. C went 2, so H2 to the 4 plus 2 6. अब इनकी अलाइनमेंट, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अगेन द फर्स्ट स्टेप इज आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, दैट इज 2 and 4। फिर हाइड्रोजन की लिखेंगे, दैट इज 1, राइट। अब ये देखते हुए मुझे मालूम है कि कार्बन एटम के लास्ट शेल मुझे रिप्रेजेंट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स के और हाइड्रोजन के भी। सो अलाइनमेंट कुछ इस तरह से बनी, कार्बन 1 कार्बन एटम, और मुझे मालूम है अल्केन है तो एक पेयर शेयर होना है, तो सेकंड कार्बन एटम और इसके बीच में एक पेयर बनाइए। इस कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, इस कार्बन एटम के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स,
1 2 3 4 और हर हाइड्रोजन एटम मेरे पास 6 है. सो 3 on one कार्बन एटम, 3 on the other कार्बन एटम. हर हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन. The blue ones, the blue round shaped structures are the electrons of hydrogen atom. अब इनके हम sharing के structures बनाएंगे. This hydrogen atom, 2 electrons satisfied, 2 electrons satisfied, 2 electrons satisfied. Let me look at the second side. 2 electrons satisfied, 2 electrons satisfied, 2 electrons satisfied. अब हमने देखा शेयरिंग के बाद हर हाइड्रोजन एटम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाइड हो गया. नाउ लेट मी टेक द फर्स्ट कार्बन एटम. इट वांट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8. कैसे बनेंगे 8? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इनको सबको कवर करते हुए आपको एक बड़ा सर्कल बनाना होगा. तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट? सबको कवर करते हुए all the 8 electrons make a big circle. So the carbon atom satisfied its 8 electrons, right? Look at the second carbon atom. इस कार्बन एटम ने इस कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. So that means ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. So now again draw a big circle covering all these 8 electrons, and this will complete your electron dot structure of ethane. Got it? तो ये है electron dot structure of ethane. Take a closer look of this structure. Okay. Alkenes. अब alkenes, I told you they are the unsaturated hydrocarbons. Alkenes वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. अब alkanes का हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+2. नोट कीजिए कि alkenes का जनरल फॉर्मूला है CnH2n. यानी अगर कार्बन एटम एक कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन एटम कितने हुए? 2. पहला मेंबर हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स हों. दैट मीन्स ये फैमिली स्टार्ट होती है इथ से, मिथ से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स चाहिए. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. मिथइन नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट? सो इथइन इस फैमिली का पहला मेंबर है. इथइन, इथ मीन्स 2 कार्बन एटम्स, इन मीन्स डबल बॉन्ड. तो 2 2s are 4, so C2H4. C3 prop, प्रीफिक्स लगा prop और इसका सफिक्स है in, prop in. C3H6. तो आइए इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज देखें. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आई टोल्ड यू, सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स बना लीजिए चेन में. अब इसमें हमारे पास 2 ही कार्बन एटम है और हमें मालूम है ये इन है, तो उन 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा लाइक दिस. अब हर कार्बन एटम की टेट्रावैलेंसी सैटिस्फाई करते हुए हाइड्रोजन एटम्स लगाएंगे. सो हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 4 और इसके हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 एंड 4. फॉर्मूला देखिए C2H4 C2H4. C3 अब 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड लगाया एंड द रेस्ट ऑफ देम कैन बी सिंगल बॉन्ड्स. सो पहले कार्बन एटम देखें 1 2 3 4 और जो सिंगल लूज बॉन्ड्स हैं उनमें हम हाइड्रोजन लगा देंगे. बीच वाला कार्बन एटम देखिए 1 2 3 4. ये बॉन्ड्स तो कार्बन ने सैटिस्फाई किए, जो अनअटेंडेड बॉन्ड जो आपको दिख रहा है वेकेंट बॉन्ड, वहां हाइड्रोजन एटम लगाइए. लुक एट द फर्स्ट वन, फर्स्ट कार्बन एटम 1 2 3 4. ये बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना, तो बाकी के 3 किसके साथ बने हैं? हाइड्रोजन के साथ, राइट? अब काउंट कीजिए हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 4 5 6. दिस इज कॉल्ड एल्कीन्स. तो आइए देखते हैं पहले एल्कीन, दैट इज इथीन. इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपके सिलेबस में है. ओके, इथीन. इथीन इज C2H4.
अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में पहला स्टेप आप याद रखिए, यू ऑलवेज स्टार्ट विद द एटॉमिक नंबर एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो कार्बन इज 2 and 4, हाइड्रोजन 1। अब हमें ये मालूम है कि ये इन है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। एक कार्बन एटम अपने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर कर रहा है। तो अलाइनमेंट कुछ ऐसी बनी, कार्बन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कार्बन एटम, 1 टुवर्ड्स द अदर आउटर साइड एंड द अदर। सो 1 2 3 4। दूसरा कार्बन एटम अगेन म्यूचुअल शेयरिंग है, तो जितने इसके शेयरिंग के लिए रेडी है इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ भी रेडी होंगे, एंड अदर्स ऑन द अदर साइड। हाइड्रोजन एटम्स आर 4। सो 4 हाइड्रोजन एटम्स कुछ इस तरह से अलाइन हुए। अब हम इनके सर्कल्स बनाएंगे wherein we are going to satisfy the each of the hydrogen atom. So this hydrogen atom, 2 electrons in the case shell, happily unsatisfied, 2 on this one. Now let me look at this one. ये hydrogen atom satisfied and satisfied. So hydrogen atoms are all happy because they have 2 electrons with mutual sharing. A mutual sharing है तो naturally this carbon atom will also share all these electrons. अब पहला carbon atom, let me count, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सारे 8 electrons कवर करते हुए हमें एक बड़ा सर्कल बनाना है। So this is how I make this big circle and make this carbon atom satisfied and happy. Let me look at the second carbon atom. 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि शेयरिंग म्यूचुअल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है उतने ही ले भी रहा है। सो ये म्यूचुअल शेयरिंग एंड अ बिग सर्कल। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब इसके साथ बच्चों आप और भी स्ट्रक्चर्स ट्राई कर सकते हो, प्रोपीन ट्राई कर सकते हो, और या इथीन के बाद नेक्स्ट प्रोपीन, ब्यूटीन, व्हाटएवर। Similarly, you can go ahead with alkynes, जिसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाओगे। So you can go ahead and practice many more electron dot structures of alkene family या आगे आने वाली alkyne family। alkyne family में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हुए स्ट्रक्चर बनाना, राइट? टॉपिक इज चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जिन्हें हम चेन्स कह सकते हैं या ब्रांचेस कह सकते हैं या रिंग्स कह सकते हैं? अब देखो, चेन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 1 more carbon atom, right? This type of arrangement is called chain like structure. अब आइए हम देखें, एक फॉर्मूला है मेरे पास C4H10। अब इसमें हम हाइड्रोजन एटम्स लगा के इस हर कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई करके चेक करेंगे। नाउ दिस कार्बन एटम हैज 1 bond, 1 2 3 more bonds, और इनको हम किससे फिलअप करेंगे? हाइड्रोजन एटम्स के साथ। सेकेंड कार्बन एटम 1 2, राइट? सो 3 4। थर्ड कार्बन एटम 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन एटम 1 2 3 4। हर जो आपने एक बॉन्ड लगाया है उसे हम फिलअप करेंगे हाइड्रोजन एटम्स के साथ। सो लेट अस फिल देम अप। Now let me count the total number of hydrogen atoms that I have filled up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. C4H10, that is butane. 4 carbon atoms, but, and it is an alkane, so butane. अब इसी के साथ मैं क्या एक और तरह से भी अरेंजमेंट बना सकती हूँ? एक कार्बन एटम को मैंने पिकअप किया, लास्ट वाले को, और सेंट्रल कार्बन एटम में अटैच किया, कुछ इस तरह से। कार्बन तो 4 ही रहे, लेकिन हम इसे चेन स्ट्रक्चर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हर कार्बन एटम एक कार्बन एटम के साथ लिंक नहीं है। द सेंट्रल कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 other carbon atoms. So this becomes a branched structure. Now let me satisfy
the tetravalency of each carbon atom. The first carbon atom, one bond is there, so 1, 2, 3. Central carbon atom, 3 bonds are there, so 1. The third carbon atom, 1, 2, 3, 4. The fourth carbon atom, 1, 2, 3, 4. Now every bond satisfied by a or filled up by a hydrogen atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? 7, 8, 9, 10. अब आप देखो कि फॉर्मूला तो सेम रहा, C4H10, 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 लेकिन वो चेन था, वो रिंग ब्रांच स्ट्रक्चर था. इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म. दैट मीन्स where the formula remains the same but the structures are different. Such a property is called isomerism, and these two structures are called isomers of each other, structural isomers of each other. Please note this down. अब ring like structures क्या है? नाम ही बिल्कुल क्लियर है इनका, where they are joined together like a ring. Let me take up the first example, which is called cyclohexane. Cyclo means in the form of a circle, right? Cyclo, CYCLO. Hex means 6 carbon atoms. Ane means all carbon atoms have a single bond. Cyclohexane. 6 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हर कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई होगी विद हाइड्रोजन एटम्स. So 1, 2, 3 and 4. Look at this one. 1, 2, 3 and 4. The third one. 1, 2. यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम. This one. 1, 2, 3 and 4. Right? Like this. This carbon atom 1, 2, 3 and 4. And this one 4. Right? So how many carbon atoms? 6. C6. H count कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right? It is in the form of a ring. तो इसको हम बोलेंगे ring like structure. एक और important ring like structure है जिसका नेम है बेंजीन. Right? Now बेंजीन का ये जो रिंग है इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल है कि हर ऑल्टरनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड है. यानी स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी C6H6. हर कार्बन एटम में टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई कीजिए. 1, 2, 3, 4 यानी एक हाइड्रोजन एटम. लुक एट द सेकंड वन. 1, 2, 3, 4 एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम is attached to every carbon atom. So C6H6 is a benzene compound, right? ये आपको मालूम होना चाहिए. बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6. ये किस टाइप का कंपाउंड है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर. इसमें क्या स्पेशल है? हर ऑल्टरनेट बॉन्ड डबल है. राइट? सो रिंग लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर where they are all closed together in the form of a ring. The last topic of this chapter is homologous series. जैसे हमने स्टार्ट किया था, homo means same, logous means family. अब क्या होता है बेटा, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लाइक सपोजिंग आई टेक वन सिंपल कंपाउंड दैट इज मीथेन, CH4. अब इन दिस इफ आई रिमूव वन हाइड्रोजन एटम एंड रिप्लेस इट बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एल्केन की तरह बिहेव अब नहीं करेगा, वो एक अलग ही फैमिली में चला जाएगा. और फैमिली क्यों हम इन्हें कहते हैं? क्योंकि इनकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोजिंग मैं किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई हेलोजन लगा दूं. व्हाट आर हेलोजेंस? हेलोजेंस आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. उन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं. So they are like chlorine, bromine, iodine, fluorine.
तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप और हैलो ग्रुप। यानी एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके अगर हमने कोई हैलोजन लगा दिया तो अब वो किस फैमिली में आ जाएगा, दैट विल कम अंडर द हैलो एल्केन, और वो एक अलग ही फैमिली होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी फ्रॉम मीथेन। सिमिलरली अगर हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके एक अल्कोहल ग्रुप लगा दें, अल्कोहल ग्रुप इज OH ग्रुप, OH टुगेदर, यानी इसके साथ पूरा OH विल बी ज्वाइन, OH विल बी ज्वाइन, तो ये एक अल्कोहल बन जाएगा। फिर ये मीथेन या एल्केन की तरह बिहेव नहीं करेगा, इट विल गो इनटू डिफरेंट फैमिली शोइंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सारे अल्कोहल्स एक ही तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ओके, द थर्ड ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच होना चाहिए। अगर मैंने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया और उसकी जगह कुछ इस तरह का ये कार्बन एटम CHO यहां अटैच कर दिया, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, तो मेरे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड it will behave different from alkanes, so it will show you a different family, a different show you different chemical properties. And the next one is ketone। अगर ये जो कीटोनिक ग्रुप होता है ये हमेशा चेन के बीच में अटैच्ड होता है, राइट। सो कीटोनिक ग्रुप इज C अटैच्ड ऑन द सेंटर ऑफ द चेन, ये दो कार्बन एटम्स के बीच में अटैच होता है, C डबल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है इसका जो फॉर्मूला है दैट इज COOH। ये पूरा का पूरा ग्रुप अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है तो वो एक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चला जाता है। एंड दिस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OH, राइट। जैसे एसिटिक एसिड HCOH, दैट्स एन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। CH3COH वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में से आएगी। तो इन सभी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। एल्केन्स एक डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, showing different chemical properties. Alkenes एक डिफरेंट फैमिली, होमोलोगस सीरीज। Alkynes एक डिफरेंट फैमिली, होमोलोगस सीरीज। All the halo alkanes different, all the alcohols different, all the aldehydes are different chemical properties. Ketones ये सभी एक अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं और बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक ही फैमिली के अंदर ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसीलिए हम इनको टर्म देते हैं होमोलोगस सीरीज। सो चिल्ड्रन, विद दिस आई कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर एज पर द लेटेस्ट सिलेबस 2021, राइट। जो आगे का पार्ट है चैप्टर का दैट इज नॉमेनक्लेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल दिस हैज बीन deleted from your syllabus for this particular session. So I would say this chapter is very easy, very scoring now. जितना भी पोर्शन इंक्लूडेड है वो समझ में आता है और उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत इजी है. So you can definitely go ahead with this chapter, making it simple, easy and scoring. So children, with this I'm ending my video, but once again I request you all to subscribe to my channel, like my video and do share my videos. So thank you and have a nice day.